So Har Har Mahadev, in this video we are going to discuss three questions again. Firstly this question, secondly this one, and third one, which is this. Okay, three questions. Both are three of them are quite easy, but this question is a highlight. Okay, this question is the highlight, and it is basically trigonometric equations plus limits, mixed concept question. Okay, so let's proceed. So clearly in the last video I have described how the algorithm, how to solve 1 to the power infinity type of forms. Okay, so clearly you can see that the expression which is here, it is tending to 1 and the numerator is tending to, sorry, the power is tending to infinity. It is quite clear, and we know the algorithm how to solve this particular question. So we're gonna raise this by subtracting 1 from this particular base and multiply by the power, which will come to be 1 plus b square. And we know from the property of logarithm that a to the power log base a to the power of x is always equal to x. A and the log a gets cancelled and x is the only remaining part. So clearly this will be cancelled and the remaining part will be 1 plus b square. It's quite easy, I guess, which will be equal to 2b sine square theta. Okay, so it was quite easy until this. Then after this, how to solve the particular question. The concept is given that b is strictly greater than 0 and theta belongs to minus pi se pi. Okay, to solve this there are two methods. Okay, one method is by taking this b to the left hand side. It will be evaluated as exactly like this, and which is equal to 2 sine square theta. And we know that b plus 1 by b is always greater than or equal to 2. Okay, by simple AM and GM property. Okay, now but this is equal to 2 sine square theta. This means 2 sine square theta should be greater than or equal to 2. So 2 is cancelled from both the sides. Sine square theta should be greater than or equal to 1. This is only possible when sine theta is exactly equal to 1. When is sine theta equal to 1? When theta is equal to plus or minus pi by 2 due to this particular term. Okay, acha, the another method to solve this particular question is also quite good. That is, it is being a quadratic. Okay, and it is 0. Clearly it is 0 and b is greater than 0. Okay, so the discriminant should be greater than or equal to 0. This implies the equation is b square minus 2b sine square theta plus 1 is equal to 0. Okay, so now if d is greater than or equal to 0, then for the solutions to exist for b, then it directly implies that 4 sine to the power 4 minus 4, okay, should be greater than or equal to 0. This implies if you cancel 4 from both the sides, we get sine square plus 1 into sine square minus 1 should be greater than or equal to 0. And we know that it is always positive, so cancel it or take it to the right hand side denominator. Yeah, so we've got the expression again and again. Sine square theta is greater than or equal to 1. The answer will be plus or minus pi by 2. The first question is done and dusted. Now give this question a try. Okay, so जब भी मैं ये क्वेश्चन देता हूँ क्लास में, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा इन्फाइनाइट पे क्या है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं 1 बाय 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा, और इसको सॉल्व करते हैं अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा एंड सो ऑन. ठीक है, फिर अल्फा बीटा का रिलेशन और अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन अगर आ जाता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन उसको सॉल्व करते हैं. लेकिन आंसर एक फाइनाइट वैल्यू आता है उनका. ठीक है, लेट्स सपोज कुछ भी वैल्यू आता हो इसका. ओके, तो तुम्हें अभी जो मेथड मैंने बोला था अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, जो भी अगर उससे तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा. लेकिन आंसर है गलत, एकदम गलत है ये हालत. क्यों? अभी रीज़न समझाते हैं. क्योंकि सब कुछ ठीक था, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, बट इसको जो तुमने डायरेक्टली ऐसा लिखा ना कि अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ये कब होता है बेसिकली? ये होता तब है जब अल्फा टू द पावर n टेंडिंग टू 0 हो जाए. मतलब, और ये 0 कब टेंड होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n 0 को टेंड होता है. और ये टेंड कब होता है? जब अल्फा का मॉड लेस देन 1 होता है. लेकिन तुमने चेक किया या नहीं कि इसका मॉड क्या है? तो इसके लिए तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, इसको अगर सॉल्व होना है, ओके, तो -1 और 1 के बीच में इसके दोनों रूट्स आने चाहिए. ओके, सो क्लियरली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है अच्छे से देखो. जस्ट अ सेकंड, एफ ऑफ 0 फिर से लास्ट वीडियो चेक करना अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो -12 विच इज़ नेगेटिव. एफ ऑफ 1 चेक करना क्या आता है 25 माइनस, अच्छा फिर से सम नेगेटिव क्वान्टिटी. ओके, फिर एफ ऑफ -1 चेक करना. एफ ऑफ -1 अगर तुम चेक करते हो तो 25 प्लस 20 माइनस 12 विच इज़ पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या है, 0 और -1 के बीच में तो एक रूट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, लेकिन 0 और 1 के बीच में एक रूट एग्जिस्ट नहीं करता. तो लेट्स सी कि वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है. अच्छा, अभी तो हमें पता चल गया कि एफ ऑफ 1 पे इसका वैल्यू नेगेटिव है. एफ ऑफ 2 पे चेक करते हैं
एफ ऑफ 2 पे आ रहा है 100 माइनस 40 माइनस 12 विच इज़ पॉजिटिव। तो क्लियरली 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ओपन ब्रैकेट एक रूट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि एक रूट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। लेट सपोज 1.2 या कुछ मान लो, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसका अगर तुम पावर करते हो, लेट सपोज ये एक अल्फा है, तो अभी अगर तुम इसका समेशन करने जाओ तो क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। एंड जब बेस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डाइवर्स करता है इन्फिनिटी को, और जो दूसरा था वो तो जीरो आ जाएगा, जीरो तो नहीं आएगा लेकिन बीटा बाय 1 माइनस बीटा ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, इनफाइनाइट प्लस एनी नंबर टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, समेशन डज नॉट एग्जिस्ट या डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले यू शुड चेक कि दोनों रूट्स माइनस 1 और 1 के बीच में है ना, अगर है तभी जाके ये सॉल्व होगा, वरना ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि आगे फंसाया जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसलिए मैंने ये बोल दिया। और इसके बाद लास्ट वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करें, वही सेम। अगर ये जीरो की ओर जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, अगर ये जीरो की ओर जा रहा है तो 10π/4 1 की ओर जाएगा, और 1 टू द पावर x तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमें तो पता है, ये भी e टू द पावर 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10π/4 जस्ट से 10π/4 प्लस x से एक घटा दो बस। अच्छा, इसको अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और लिमिट यहाँ पे होगा एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे ले जाओ, 10 को एक्सपैंड करो। ठीक है, 10a + b का फॉर्मूला लगे तो थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाएगा एग्जाम हॉल के मुकाबले। ठीक है, एग्जाम हॉल में सॉरी, तो क्या करो, एल ऑपिटल लगा दो यहाँ पे, एल ऑपिटल इज क्वाइट ईजी। तो आ क्या जाएगा, sec² x + π/4 होल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जीरो की ओर टेंड कराते हैं तो ये कितना आएगा, π/4, और sec π/4 कितना होता है, √2 का स्क्वायर विच इज़ 2। तो आ कितना जाएगा, e टू द पावर में 2 आ जाएगा करेक्ट आंसर, e टू द पावर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।